اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی، میں اسے افسوسناک یہ خبر کہوں گا۔ جی ہاں، حرمین شریفین، جہاں پر یوں سمجھیے کہ اگر یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے زمانے سے حرمین شریفین میں جہاں 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے، کورونا کے نام پر تخفیف کی گئی، شارٹ کی گئی، اور اب 10 رکعت وہاں پر حرمین شریفین میں نماز تراویح کی پڑھی جا رہی ہے۔ اس کو لے کر باقاعدہ دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ دارالعلوم دیوبند انڈیا نے غصے کا اظہار کیا۔ سعودی حکومت سے کہا کہ سابقہ معمول کے مطابق سنت تراویح رائج رکھی جائے۔ ملی تنظیموں سے سعودی سفارت خانے کو میمورنڈم بھیجنے کی بھی دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے۔ حرمین شریفین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت تراویح باجماعت پڑھائے جانے پر عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اب پوری دنیا سے کووڈ کا بحران ختم ہونے کے ساتھ سعودی عرب میں بھی تمام پابندیاں ختم کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح کے بجائے 10 رکعت باجماعت پڑھایا جانا پورے عالم اسلام کے لیے نہایت فکر مندی کی بات ہے۔ دیوبند نے یہ بھی کہا ہے تمام تنظیموں سے، ملی تنظیموں سے، کہ باقاعدہ سعودی سفارت خانے کو میمورنڈم بھیجا جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی۔ جی ہاں، شیو سینا کے قدآور ترجمان نیتا لیڈر سنجے راؤت پر ای ڈی نے کارروائی کی۔ جی ہاں، یہ وہی سنجے راؤت ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پوتن دلی میں بیٹھا ہوا ہے اور دلی سے ای ڈی، سی بی آئی کے بم پھینکتا رہتا ہے مہاراشٹر میں۔ اپوزیشن پارٹیوں کو دبانے اور کچلنے کے لیے کیندر سرکار گھٹیا حرکت کر رہی ہے، ایسا صاف طور سے مہا وکاس اگاڑی کا کہنا ہے۔ سنجے راؤت صاحب کے علی باغ میں 8 پلاٹ اور دادر میں فلیٹ کو ضبط کیا گیا، لیکن سنجے راؤت صاحب نے کھول کر کہا میں جھکوں گا نہیں، یہ پراپرٹی نہیں، میرا گھر ہے۔
वहीं पर मैं आपको बता दूं कि बकायदा महाराष्ट्र के गृह मंत्री वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि ईडी की मुबैना वसूली की तहकीकात के लिए SIT तश्कील दी जाएगी। यानी खबरें ये भी आ रही है कि बकायदा ईडी ने वसूली का काम भी शुरू कर दिया है, धमकाकर वसूल करने का गेम भी ईडी ने शुरू कर दिया है। वहीं पर केंद्र सरकार पर तो सीधा निशाना साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए CBI और ईडी का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसी को लेकर जयंत पाटिल साहब राष्ट्रवादी के कदावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र ने भी कहा है कि ईडी की कार्रवाई संजय राउत पर दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि संजय राउत बड़े दबंग अंदाज में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। हुकूमत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल बीजेपी केंद्र सरकार कर रही है। आइए नाज़रीन, कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। मंगलोर के SDM लॉ कॉलेज की एक बाहिजाब तालिबा जिसने अपने आप को पूरा हिजाब में ढांक कर रखा है और अपनी इज्जत व इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के साथ उसने तालीम हासिल की। सुहाना सफर ने यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन हासिल की। बाहिजाब रहकर अपनी इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत करते हुए उसने दूसरा रैंक हासिल कर दी है। कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के SLU साल 2021 के फाइनल इम्तिहान में कन्नड़ मीडियम से एग्जाम लिखते हुए उन्हें यह नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि सुहाना सफर मंगलोर के करीब उल्लाल कोड़ी की रहने वाली है। मोहम्मद हनीफ और बीबी रुकैया की ये बेटी सुहाना की इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने पर घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन ये एक यूँ समझिए कि भगवधारियों के मुंह पर तमाचा है, जोरदार झन्नाटेदार जूता है जो बाहिजाब बेटियों को तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नजर आइए, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त रियासत गुजरात से आ रही है। जी हाँ, रियासत गुजरात के कांग्रेस के चाणक्य समझे जाने वाले, बल्कि सोनिया गांधी के बड़े ख़ास और मुशीर एडवाइज़र माने जाने वाले मरहूम अहमद पटेल के बेटे इस वक्त कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से कहा कि मेरे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का इशारा दे दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, हाईकमान की तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं की गई, मैं ऑप्शंस को खुला रखता हूँ। मौजूदा हालात में इनका ये रवैया कांग्रेस क़यादत के लिए एक झटका समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में बहुत से लीडरों ने पार्टी छोड़ी है और बहुत से लोगों ने एहतजाज का बुगल बजाया है, फैसल के इस इक़दाम से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ताहम फैसल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बारे में क़यास आराइयाँ और बातें छिमे गोइया तो पिछले साल से ही गर्दिश कर रही थी। अप्रैल 2021 में उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि देरी न ख्वाहिश पूरी हो गई। वो दिल्ली में रहते हैं और केजरीवाल के काम करने के अंदाज के बड़े फ़ैन हैं। तो खैर, कांग्रेस को भी ये चाहिए कि बाकायदा इस बात का पूरा ख्याल रखें। एक्चुअल में कांग्रेस का भी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग असल काम करने वाले हैं उन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं जाता और जो लोग बेचारे खुशामदी किस्म के रहते हैं और आगे पीछे घूमते रहते हैं, पैर दबाते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। इससे पार्टी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से चौंका देने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, दिन दहाड़े दिन के उजाले में नांदेड़ शहर के मशहूर बिल्डर संजय बयानी का कत्ल कर दिया गया। 9 राउंड फायरिंग उन पर की गई। ड्राइवर जख्मी है, हमला आवर मोटरसाइकिल पर आए थे। इस खबर को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मची है। इस फायरिंग में बिल्डर का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। ये वाकया गुज़िश्ता कल शहर के शारदा नगर इलाके में पेश आया। नांदेड़ में फायरिंग के वाक़े ने एक बार फिर शहर को हिलाकर रख दिया है। और इसी को लेकर ये खबर आ रही है जनाब कि वहाँ के जो ताजरान एसोसिएशन है, बिजनेसमैन की जो फाउंडेशन है, उन्होंने आज नांदेड़ बंद का ऐलान किया है।
नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने डायरेक्ट ये बात कही है कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी लोगों को, हिंदुओं को भी, पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बना रही है। और अखिल भारत हिंदू महासभा ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसको भी बीजेपी ने ही तश्कील दिया है। यानी जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो ऐसे ही अखिल भारत हिंदू महासभा का इल्जाम है कि SDPI को भी बीजेपी ने ही तश्कील दिया है। इस बात का इल्जाम अखिल भारत हिंदू महासभा के रियासती सदर राजेश ने लगाया है। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक राजेश ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर रही है, हिंदू नौजवानों पर झूठे मुकदमा दायर करके उन्हें खुद बीजेपी जेल भेज रही है और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी रोटियां खा रही है और मुल्क के हिंदुओं को भी बेवकूफ बना रही है। नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि 4 पाकिस्तानी चैनल समेत 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने हिंदुस्तान की कौमी सलामती, खारिजा पॉलिसी और अमन आमा से मुतालिक प्रोपेगेंडा फैलाने पर 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। IT रूल्स 2021 के तहत पहली बार 18 हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। 4 पाकिस्तान से चलने वाले यूट्यूब चैनल को भी बंद कर दिया गया है। इस तरीके से 22 यूट्यूब चैनल को बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है। यूट्यूब चैनलों ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए टीवी चैनल्स के लोगो और झूठे थंबनेल्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट्स, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आइए नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के मुंबई से। जी हाँ, बीजेपी के एक लीडर है मोहित कंबोज, इन्होंने शरारत करते हुए जहरीली बात कही और ये कहा कि हनुमान चालीसा के लिए मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि राज ठाकरे की जबान जो लाउड स्पीकर मस्जिदों के खिलाफ बोली थी, उसकी स्क्रिप्ट अब पूरा क्लियर होने लगा है कि सारी स्क्रिप्ट बीजेपी ने ही लिखी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब साफ तौर से इसके खिलाफ हिंदू भाई भी बोलने लगे हैं और तमाम लोग ये कहने लगे। दिलीप वलसे पाटिल जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने तो कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना बीजेपी का एजेंडा है। हिंदू वोटों को वरगलाने के लिए इस तरह की घटिया और नापाक मुहिम और अवाम में बेचैनी का एहसास पैदा कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि खबर ये भी है कि ये नफरत की सियासत अब कुरला में पहुंच गई। गुज़िश्ता कल कुरला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मन से कारकुनान ने हनुमान चालीसा पढ़ा, आखिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये नीच नाटक जो है हिजाब के साथ साथ, ये नीच नाटक कर्नाटक से शुरू हुआ था। तो कर्नाटक के वजीर आला CM बोमई का बयान आया है कि अजान का मामला सबको एतमाद में लेकर तय किया जाए। नाज़रीन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुल्क का एक ऐसा दहशतगर्द जो दहशत फैला रहा है, डर और खौफ का माहौल बना रहा है और डायरेक्ट किसी समाज के कत्ल करने की बात कर रहा है, हिंदू भाइयों को हथियार उठाने के लिए वरगला रहा है, यानी खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और आतंकवाद का खेल खेल रहा है। मगर कमाल की बात यह है कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी को लेकर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने यह कहा है कि उस आतंकवादी यति नरसिंह अन्नन के खिलाफ NSA यानी मुल्क से दहशतगर्दी का मुकदमा, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। वहीं पर नेशनल सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि इस मुल्क से और मुल्क की गंगा जमीनी तहजीब से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे घटिया अनासर को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारे मुल्क को खाना जंगी की आग में ढकेलने की एक नापाक साजिश है। नरसिंह अन्नन और सुरेश चौहान जैसे देश के गद्दारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। वहीं पर गुज़िश्ता कल बाकायदा अभिसार शर्मा और न्यूज़ क्लिक ने साफ तौर से ये कहा है कि ये देशद्रोह है और ये मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं और मुल्क को तोड़ने और तकसीम करने की नापाक साजिशें कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस तो इस बात का है कि दिल्ली पुलिस ऐसे आतंकवादी को गिरफ्तार करने में नाकाम है।
आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हज 2022 इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि रमज़ान में हमारे यहाँ से, इंडिया से बड़ी तादाद में लोग उम्रे के लिए रवाना हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी कोविड की जितनी पाबंदियाँ थी सब ख़त्म हो गई है। हरमैन शरीफैन में पुराना खुशनुमा नज़ारा वापस आ चुका है। ये अलग बात है कि हरमैन शरीफैन में एक गलत हरकत तो की जा रही है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावी पढ़ी जा रही थी, 10 रकात कर दी गई कोरोना के नाम पर। लेकिन अब दारुल उलूम देवबंद हैं, रज़ा एकेडमी हैं, इन तमाम लोगों ने कहा है कि सऊदी हुकूमत को चाहिए कि ये गलत हरकत न करें, बल्कि सबका ख्याल रखते हुए 20 रकात पढ़ें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से वहाँ पढ़ी जा रही है। तो खैर, अभी खबर ये आ रही है कि अब 2022 का इंशाअल्लाह हज भी होगा। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात से कवी इम्कान है, यकीन है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने गुज़िश्ता कल कहा है कि हुकूमत हिंद ने इस साल के हज के लिए तमाम तर तैयारियाँ कर ली हैं और बस सऊदी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।